Now see, today we are starting a new topic, and as far as your syllabus goes, the topic that we are starting today is this one, number 5, work, energy and power. This is given in this whole box, and after this, only this part is remaining in your syllabus. We have completed everything up to unit number 4 in your syllabus. So all this part has been covered in your syllabus. And now today we are going to start with the fifth topic, that is work, energy and power. Let us first discuss, or rather I would say that let us revise what is the concept of work. Work done by a force is defined as the product of force and distance moved in the direction of force. You already know that. And work done by a force is defined by the dot product of force and displacement. I sincerely hope you know that also. And dot product of any two vectors. Let us say you are taking the dot product of vector A and vector B, where vector A is given like this and vector B is given like this. And the angle between these two vectors is, let us say, theta. What is the answer to this? Dot product of A and B. Tell me if somebody knows the answer to this. AB cos theta. AB It cos is, theta. it is the magnitude of A multiplied by magnitude of B into cos of the angle contained between them. This is the definition of dot product. Now, similarly, whenever you say that there is a force acting on a body, let us say the force has a direction like this, and the displacement of the body is happening like this, and the angle between them is this. Then the work done is given by F dot S. That means it would be magnitude of S multiplied by magnitude of displacement multiplied by cos of theta. Now, if you want to understand this from a different perspective, that is also possible. Because some of you might be wondering, since simply because the teacher is telling us that the work done is always given by the dot product, we have to learn that. But what is the logic behind this? Why is the work done multiplied by cos of theta? Why can't it be simply force multiplied by distance? Because we have already learned in some previous lectures or previous sessions that work done by a force is always counted only when the displacement occurs in the direction of the force. So if the force is acting horizontally on an object resting on a floor, and let us ignore friction for a while, and let us say the box moves by a distance of x meters. In this case, I am not going to apply any dot product. I simply say that the work done is force into x. As simple as that. Now, where did the dot product and all go? Actually, since the angle between displacement x and the force vector F is equal to 0, so cos of 0 is equal to 1. But actually, the cos theta is still here. The only difference was that the theta is equal to 0. Now, if you simply follow this perspective, that work is only performed when displacement occurs in the same direction as that of force. Now, look at this. Now, if I look at this
previous scenario, what is the force that is acting in the direction of the displacement? The actual direction of force is at an angle of theta. So if you ask me what is the component of force that is actually acting in the direction of displacement, then I will have to draw two components. The first component will be perpendicular to the direction of displacement, that is F sine theta, and another component will be parallel to the direction of displacement, that will be F cos theta. And now my task is simple. The component of force that is perpendicular to displacement cannot perform any work. So the work done by F sine theta will be zero. And the work done by F cos theta will be simply the product of F cos theta and S. So it once again brings us back to the same concept of dot product. So actually it is not the dot product that is giving you the work. The physicists or the physics part of the phenomenon dictates that if force is acting at an angle with the displacement, then the work done will only be counted by that component of force which is in the direction of displacement, and that is F cos theta. So every time you get an angle between force and displacement, F cos theta is the component that is actually going to do the work, not complete F. So always the work done is going to come out as F cos theta into displacement. And since F cos theta into displacement always represents the dot product only, so mathematicians now tell us that if you want to find out the work done by a force, you directly take the dot product. This is how the concept of dot product came in. Otherwise, it was not the dot product that decided that work should be done according to dot product. Is this clear now? कि डॉट प्रोडक्ट क्यों अपन वर्क डन के लिए लेते हैं, इसका आपको मैंने लॉजिक और रीजन बता दिया. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन. अब यहां पर आपको ये डॉट प्रोडक्ट को लेकर के एक इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि भाई एक छोटी सी डिस्टेंस डी आर को चलने में अगर वर्क डन डी यू जो है एफ डॉट डी आर है, तो टोटल वर्क कितना होगा पी से लेकर के क्यू तक चलने में. In that case, you know that you simply have to integrate the dot product f dot dr from p to q. ठीक है. Now using this concept we go to find the work of a constant force in rectilinear motion. अब देखो यहां पर क्या किया है, एक पॉइंट पे फोर्स लगी है, f फोर्स है, and it is acting at an angle theta. The displacement is occurring along the horizontal line. यानी कि f की दिशा में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, फोर्स तो यहां लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 1 से लेकर के सीधे 2 तक हॉरिजॉन्टली चल रहा है. तो x1 से लेके x2 तक चला. हाउ डू यू फाइंड द वर्क? अगर मेरे से पूछो तो मैं तो सीधे ही आंसर दे दूंगा, f cos थीटा तो मेरा कंपोनेंट हो गया फोर्स का जो कि x की दिशा में है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x2 minus x1. सो दिस इज द डायरेक्ट आंसर. एंड इफ यू वांट टू फाइंड इट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, तो इसको इंटीग्रेशन वाले से करके देखो. क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट है, तो एफ कॉस थीटा कांस्टेंट बाहर आ गया. फिर इंटीग्रल रह गया सिर्फ dx का x1 से लेके x2 तक का. ठीक है. एंड दैट विल गिव यू x2 minus x1. यहां तक क्लियर हो गया कि अगर आपको किसी भी चीज के बारे में वर्क डन, अगर मैं कोई फोर्स दे करके पूछूं तो आप वर्क डन निकाल सकते हैं क्या? लेट अस चेक इट आउट. An object was already moving with a constant velocity of 2 meter per second, but somebody is trying to pull it back with a continuous force of 2 newton. But the object is not moving in the direction in which the person is trying to pull it. The object is moving in the forward direction at a constant velocity of 2 meter per second. Now we want to find out what is the work done by the person on the body. If the object moves 10 meters. इसका आंसर बताओ. ऑब्जेक्ट का मास वास कुछ नहीं दे रखा,
स्मूथ सरफेस पे चल रही है और 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से राइट साइड को चलती जा रही है, लेकिन एक आदमी उसको पीछे को खींच रहा है 2 न्यूटन की फोर्स लगा करके कंटिन्यूअसली, लेकिन उसके 2 न्यूटन के लगने से उसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बॉडी तो आगे ही चल रही है. द बॉडी हैज मूव्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन एंड मूव टू अ फाइनल पोजिशन ऑफ 10 meters डिस्टेंस. I want to find out how much work was done by the person who is trying to pull the body backwards. वो कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा उससे, बॉडी तो आगे को चल रही है और वो खींच रहा है पीछे को. तो इस 2 न्यूटन फोर्स के द्वारा कितना काम किया गया? जीरो. व्हाट इज द आंसर? जीरो. नो. 20. कितना है? 20. 30. 20. 20. The correct answer is -20 Newton meter or -20 joules. This is the correct answer. अब देखो तो ऐसा माइनस क्यों हुआ? माइनस क्यों हुआ, इसके दो तरीके से कारण बताता हूं मैं आपको. पहला कारण तो है, इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is in line with displacement but opposite to it, then you have to use a minus sign. और आप ये कहोगे कि फोर्स वर्क कर नहीं रहा, फोर्स पे वर्क हो रहा है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में तो बॉडी मूव नहीं हो रही, बॉडी फोर्स को लेके जा रही है आगे. ठीक है, तो इसलिए उल्टा वर्क हो रहा है. ये दूसरा पर्सपेक्टिव आपकी फर्स्ट प्रिंसिपल से आ जाता है. व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एक्स, यानी कि एफ इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ थीटा. अब बताओ, डिस्प्लेसमेंट जो एक्स हुआ है वो तो राइट साइड में हुआ है और फोर्स लग रही है आपकी पीछे को. एंगल इन दोनों के बीच में कितना हो गया? 180. 180 डिग्री. ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कॉस ऑफ 180 डिग्री कितना होता है? Cos of infinity -1. -1 होता है, तो इस तरीके से भी माइनस आ गया आपके. क्लियर हो गया? सो वेन एवर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, वर्क डन इज पॉजिटिव. If force and displacement are opposite to each other, then work done is negative. ठीक है, ये याद रखना है, और अदरवाइज आप अपने फर्स्ट प्रिंसिपल से भी इसको निकाल सकते हैं. Now let us move forward. Work done by weight of an object. ठीक है, ये बहुत सिंपल है. वेट एक फोर्स है कि नहीं? If a particular body has a mass m. हेलो सर. हाँ बोलो. सर वॉइस लैग कर रही है आपकी. वॉइस लैग कर रही है? जी. एक सेकंड. वॉइस लैग कर रही है या ये राइटिंग लैग कर रही है मेरी? नो सर, वॉइस लैग कर रही है. अच्छा एक सेकंड, फिर मैं अब या भी तो कर ये रही है. कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होगी है. वेट अ मिनट. बैकग्राउंड से बहुत वॉइस आ रही है. क्या हुआ? बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा वॉइस आ रही है. बैकग्राउंड से मैं एक बार ये अपना हेडफोन लगाने की कोशिश करता हूँ, उससे शायद थोड़ा सा फर्क पड़ जाए. अभी देख लेते हैं, और अगर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा फिर तो नोबडी कैन हेल्प अस. मेरी आवाज आ रही है क्या अभी आपको? यस सर. यस सर, आ रही है. अभी क्लियर है? यस सर. और बैकग्राउंड में थोड़ा सा कमी हुई कि नहीं, बैकग्राउंड नॉइस में? यस सर, है अभी तो फिलहाल. बैकग्राउंड नॉइस देखो, ये तो क्या है, अभी कॉलेज में बैठे हैं. घर पे होता तो मैं अभी खिड़की दरवाजे सब बंद करके अच्छे से पैक करके लेता लेक्चर.
लेकिन यहाँ पर तो अभी बाहर काम चल रहा है, दूसरे 2-3 फैकल्टी और लेक्चर ले रहे हैं, सो आई कैन नॉट हेल्प। एनीवे, ओके अभी सर, प्लीज कंटिन्यू। अभी अभी लैग तो नहीं है ना आवाज में? नो सर। चलो ठीक है। नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वर्क डन बाय weight. Weight is a force. So if any body has a particular mass m, then we always conveniently represent the weight of the body acting in the direction of gravity or the acceleration of gravity. Now, work done by a weight will only be counted if the body either moves upwards or downwards. For example, if a vehicle is moving on a road at, let us say, some velocity is equal to 3 meter per second. Let us assume that. Now, weight of the object will always be acting downwards. And this mg vector, after some time, will be acting here. After some time, it will be acting here because the body is moving in the right side. Will there be any work done by this mg force when the body is moving in the right hand side? कोई वर्क काउंट होगा क्या इस mg फोर्स के कारण? Sir. वर्क डन विल बी 0 फॉर mg. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल भी लगा करके देखो तो आपकी फोर्स तो नीचे को है और डिस्प्लेसमेंट राइट साइड को है। एंगल इन दोनों के बीच में कितना हो गया? 90 डिग्री। 9, और कॉस ऑफ 90 कितना होता है? 0 होता है। 0. तो इसलिए W इंटू एक्स करोगे तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो डब्ल्यू एक्स कॉस 90 इज 0. सो वेन एवर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट are mutually perpendicular to each other, in such cases the work done is always 0. ठीक है, अब अपन बात कर रहे थे वर्क सर डन बाय, हाँ सर लेकिन फिर क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं ना ऐसे इसका? भाई, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लोगे? क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, लेके तो आपका रोटेशन आता है। क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट आप वर्क डन के लिए क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लेते ना। वर्क डन के लिए नहीं लेते, लेकिन वैसे अपन क्रॉस प्रोडक्ट लेके कर सकते हैं ना? नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट लेके क्यों करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट गणित में कहीं पे कोई चीज बता रखी है तो आप कहीं पे भी थोड़ी लगा दोगे। कोई परपेंडिकुलर चीज दिख रही तो वहां क्रॉस प्रोडक्ट लगाना जरूरी थोड़ी है। भाई आप तो ये देखो, वर्क डन का कॉन्सेप्ट डॉट प्रोडक्ट से क्यों दिया जाता है। मैंने पहले आपको यही समझाया था कि डॉट प्रोडक्ट से वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं जनरेट होता, वर्क के कॉन्सेप्ट से डॉट प्रोडक्ट कनेक्ट होता है। आप ये देखो कि एक फोर्स एक्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। अब मेरे को ये बताओ कि एक्स की दिशा में एफ का कंपोनेंट कितना है? आप बताओ चलो। एफ कॉस थीटा। कॉस थीटा है ना, तो एफ हाँ, इंटू कॉस ऑफ 90 कितना हो गया? 0. 0 हो गया ना। तो जब x की दिशा में कोई फोर्स का कंपोनेंट ही 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय x करोगे वर्क निकालने के लिए, वो भी 0 ही आएगा ना। यस सर। तो अब आप बोल रहे हो कि इसमें मैं क्रॉस प्रोडक्ट लगाना चाहता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लगाओगे? क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आप सबसे पहली बात तो ये समझो, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो अगर एफ यूं एक्ट कर रहा है, एक्स यूं एक्ट कर रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा इस तरीके से। ये मोमेंट्स के लिए लगाया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, वर्क डन के लिए नहीं लगाया जाता। ठीक है, यस सर। ओके। नाउ मूविंग ऑन, अपन वेट की बात कर रहे थे। तो इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ वेट mg and you allow the object to fall down by a distance of, let us say, y, तो अपन ये कहेंगे कि mg जो वेट था वो y डिस्टेंस से ट्रेवल किया अपनी ही दिशा में, तो इसीलिए वर्क डन बाय द फोर्स और mg विल बी सिंपली mg into y, पॉजिटिव। Now on the other hand, if an object is simply placed vertically and then you try to move it vertically upwards by a distance of y, in this case the work done will be minus of mg into y.
अब ये वर्क डन नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि आपकी फोर्स यानी कि mg वो तो नीचे को है और डिस्प्लेसमेंट उल्टी है ऊपर। ठीक है, तो वेट जो है वो तो हमेशा ही नीचे को रहती है। तो अब आपके दो केस हो गए। वर्क डन इन द केस ऑफ weight of an object is always taken as positive when the displacement is downward, and work done by weight of an object is considered as negative when you displace it in the upward direction. तो वेट का वर्क सिर्फ दो ही केस में निकलता है, या तो उसको नीचे ले जाओ या ऊपर ले जाओ। आगे पीछे ले जाने से वेट का कोई वर्क क्रिएट नहीं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो वर्क डन बाय वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सिंपली पॉजिटिव when it moves down and negative when it moves up. हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए वर्क डन जीरो है। किसका वर्क डन? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का वर्क डन जीरो। जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होंगी उनका तो वर्क निकलेगा। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब सबसे पहले तो अपन को थोड़ा सा स्प्रिंग के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। देखो, वर्क डन तो वही कॉन्सेप्ट है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, बस और कुछ नहीं है। ये देखना है कि फोर्स और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो एफ का वो कंपोनेंट लेके देखो जो कि एक्स की दिशा में है, फिर उसको मल्टीप्लाई करो, एंड दैट ऑलवेज कम्स एज एफ कॉस थीटा। तो अब अपन स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। स्प्रिंग एक ऐसी खास ऑब्जेक्ट है जिसको कि अगर आपने थोड़ा सा खींचा, इतना डिस्टेंस तक खींचा, तो ये स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स जनरेट होगी। स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के, और सपोज इस पोजीशन पर ये अनस्ट्रेच्ड है। ठीक है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज अनस्ट्रेच्ड डिस्टेंस। ये वाली अनस्ट्रेच्ड डिस्टेंस का मतलब है कि स्प्रिंग ना तो दबी हुई है ना खींची हुई है। अब इस पॉइंट से आगे आपने उसको कितना खींचा? एक्स डिस्टेंस से खींचा। ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस से खींचा तो स्प्रिंग को खींचे रखने के लिए आपको एक फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपने जैसे ही ये फोर्स छोड़ा ये स्प्रिंग वापस पीछे चले जाएगी। सो नाउ वी वांट टू नो व्हाट इज द फोर्स एफ दैट इज रिक्वायर्ड टू keep the spring stretched by a distance of x from its unstretched position. That always comes out as k into x. ठीक है, तो स्प्रिंग के बारे में मेरे ख्याल से ये इंफॉर्मेशन आपको पता ही है कि स्प्रिंग कांस्टेंट अगर दे रखी है तो उसको x से मल्टीप्लाई करने पे ये पता लग जाता है कि कितनी फोर्स लगाने पे x डिस्टेंस खींचेगा। नाउ दिस x इज वेरिएबल, सो this f is also variable, k तो कांस्टेंट है। अब x वेरिएबल होने का मतलब क्या है? मैं आपको दो तीन सिचुएशन बताता हूँ। ये अनस्ट्रेच्ड पोजीशन ऑफ स्प्रिंग है, फिर आपने इस स्प्रिंग को इतना खींच के रखा, फिर आपने स्प्रिंग को इतना खींच के रखा, और आपने स्प्रिंग को इतना खींच के रखा। स्प्रिंग कांस्टेंट तो k कांस्टेंट ही है, लेकिन हर केस में आप इसको अलग अलग डिस्टेंस से स्ट्रेच कर रहे हैं। पहले इतना खींचा, फिर इतना खींचा, फिर इतना खींचा। तो ये हो गया x1, ये हो गया x2 और ये हो गया x3। एंड इन ऑल थ्री सिचुएशंस द फोर्स रिक्वायर्ड इज डिफरेंट। पहले केस में फोर्स रिक्वायर्ड थी k इंटू x1, दूसरे केस में फोर्स रिक्वायर्ड थी k इंटू x2, और तीसरे केस में फोर्स रिक्वायर्ड थी k इंटू x3। अब अपने पास दुविधा ये आ गई कि आपको वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालनी है, और स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट ही नहीं है, वो x के चेंज होने के साथ फोर्स खुद ही चेंज हो जाती है। तो यानी कि आप अगर ये देखो कि इस स्प्रिंग को यहां से लेकर के यहां तक खींचा गया, तो इन हर पॉइंट्स पे, इस हर इंस्टेंस पे इसके अलग अलग फोर्स। तो अब क्या किया जाए? अगर आपकी फोर्स ही कांस्टेंट नहीं है तो वर्क डन कैसे निकाला जाए? उस केस में अपन क्या करते हैं,
अपन ये बोलते हैं कि लेट द फोर्स बी कंसिडर्ड कांस्टेंट फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx, और इसके कारण जो छोटा सा वर्क होगा इस dw को पहले कैलकुलेट करो, फिर टोटल वर्क जो है वो इस तरह से कैलकुलेट करो, जीरो से लेकर के टोटल x डिस्टेंस तक f डॉट dx को इंटीग्रेट करो। दिस इज हाउ यू फाइंड द वर्क डन फॉर अ नॉन कांस्टेंट फोर्स। अब देखो ये चीज मेरे को तब नहीं करनी पड़ती अगर मैं ये बोलता कि भाई एक ऑब्जेक्ट को मैं 2 न्यूटन फोर्स से खींच रहा हूँ, 2 न्यूटन कांस्टेंट है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, तो मैं इसको 4 किलोमीटर तक खींचता रहूंगा तो भी 2 न्यूटन 2 न्यूटन ही रहेगी। और मैंने कहा कि मैं इसको खींचता हुआ ले गया कितने मीटर तक, 5 मीटर तक खींच के ले गया। बोला कि अब वर्क निकालो। बोला बहुत आसान है, वर्क डन इज इक्वल टू 2 × 5 यानी कि 10 जूल्स। लेकिन ये चीज स्प्रिंग के साथ नहीं हो पा रही। स्प्रिंग की फोर्स तो kx2 है या फिर kx है, विच इज अ वेरिइंग क्वांटिटी। ये x चेंज होने के साथ साथ f चेंज हो रही है, तो अब जब f ही चेंज हो रही है तो मैं मल्टीप्लाई किसको करूं। तो ये ऐसी केसेस में आप क्या करते हो, पहले तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालो f इंटू डी एक्स, फिर उस वर्क डन को इंटीग्रेट कर दो 0 से x तक। इस तरीके से निकाला जाता है व्हेन द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल। अब इस पे देखो कैसे हुआ। अगर मैं इंटीग्रल 0 to x f dx करना चाहता हूं टोटल वर्क निकालने के लिए, तो f क्या चीज है, k इंटू एक्स है, 0 to x kx dx। ठीक है, k तो कांस्टेंट है, k बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 to x x dx इंटीग्रेट करूंगा तो k इंटू x² by 2 0 to x, and eventually this comes out as half kx²। this is the work done by the spring force। अब ये कॉन्सेप्ट आपको बार बार कहीं एग्जामिनेशन में रिपीट ना करना पड़े, तो इसीलिए अब अपन इसको रट लेंगे। we will remember it by heart। what is the work done by a spring force for a spring having spring constant k? it is half of kx²। अब इन्होंने जैसे इंटीग्रेशन में x1 से लेके x2 तक मूव किया है, तो उसमें kx² की जगह kx2² माइनस x1² आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने x1 की जगह 0 ले लिया था, अनस्ट्रेच्ड पोजीशन ले ली थी। इन्होंने दो स्ट्रेच्ड पोजीशन ले लिए, एक पोजीशन ऐसी ले ली जिसमें स्ट्रेच x1 था और दूसरी पोजीशन ले ली जिसमें स्ट्रेच x2 था, तो इस तरीके से आ जाएगी। हाँ, कोई डाउट है? हाँ पूछो। kx है कौन सा? f इक्वल टू kf ये इसके हाँ पीछे कोई लॉजिक? हाँ बिल्कुल लॉजिक है। स्प्रिंग की जो कांस्टेंट होती है k, वो होता है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स। एक मिनट में उसमें लिख के दिखाता हूं। स्प्रिंग कांस्टेंट k is defined as the force required to pull or push the spring by a unit distance। ये इसकी डेफिनेशन होती है कि कितना बल लगाना पड़ेगा मुझे स्प्रिंग पे उसको खींचने के लिए या दबाने के लिए एक यूनिट डिस्टेंस से। तो इसीलिए के की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर होती है, और स्प्रिंग कांस्टेंट जो होती है किसी भी स्प्रिंग की, वो इसी यूनिट के साथ अटैच होकर आती है। जैसे आप बाजार में गए और आपने एक स्प्रिंग खरीदी, ठीक है, अगर वो स्प्रिंग बेचने वाला कोई टेक्निकल बंदा हुआ तो उससे आप ये पूछ सकते हो कि इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी, तो उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट उस पर लिखा होगा k इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर मीटर।
यानी कि ये जो स्प्रिंग है इसको 1 मीटर तक अगर खींचना हो या दबाना हो तो आपको 10 न्यूटन की टोटल फोर्स लगानी पड़ेगी। ये है। तो अब अगर आपसे ये पूछे कि अगर इस स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट 10 है तो इस स्प्रिंग को मैं खींचना चाहता हूं 2 मीटर से, मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? आप बताओ। 20। 20 हो गया। वो कैसे किया? आपका एक्स था 2 मीटर और के था 10 मीटर, तो 20। सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। वॉइस लैग हो रही है? ये मेरे को लग रहा है ये यहाँ की इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। हाँ, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। सर ठीक है। ये अभी अपने पास और कोई चारा नहीं है, वी हैव टू मैनेज विद दिस ओनली, क्योंकि अब एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ में यहाँ पर क्या है, 3-4 एक साथ लेक्चर चलते हैं ना पैरेलल में, तो वो कनेक्शन शेयर हो जाता है, मेरे ख्याल से उसी से प्रॉब्लम हो रही होगी। लेकिन पहले भी अपन ने लिया हुआ है, ये पहली बार ही हो रहा है ऐसा लैग की प्रॉब्लम। सर ये अभी कुछ दिन के लिए ऐसे मतलब दिक्कत आ रही है। बाकी लेक्चरों में भी आ रही थी क्या? यस सर। तो कह नहीं सकते। चलो एनीवे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या आपको? स्प्रिंग फोर्स इज given by k into x. The force of spring is k into x. The work done by spring is always given by half of kx square. Now, let us do a small numerical to clear your concepts. I have a spring of 2 Newton per meter spring scale. अच्छा, एक चीज और आपको बताता हूं, k के क्या क्या नाम है। It is called as spring constant. It is also called as spring scale. ये दोनों नाम से इसको याद रखें, ठीक है? इट इज ऑल्सो नोन एज स्प्रिंग स्टिफनेस। तीन नाम याद रखने हैं आपको, क्योंकि एग्जामिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट नाम से भी दे सकते हैं, स्प्रिंग स्केल नाम से भी दे सकते हैं, स्प्रिंग स्टिफनेस नाम से भी दे सकते हैं। ऑल दीज यू हैव टू रिमेंबर, वरना आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, ये स्केल क्या होता है स्प्रिंग का स्टिफनेस क्या होता है। Spring constant, spring scale, spring stiffness, they are all the same name of the constant K for a spring, which is nothing but the force required to pull or push the spring by a unit distance. And the unit of K is Newton per meter. ठीक है? अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि 2 न्यूटन पर मीटर की स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से खींच के पकड़ा गया, इस स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है? आई विल रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन। अ स्प्रिंग ऑफ 2 न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग स्केल, a spring of spring constant 2 Newton per meter was stretched by a distance of 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर से उसको खींच लिया, तो यानी कि उस पर वर्क हो गया। somebody has done work on the spring. What is the potential energy stored in the spring? भाई उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई ना, क्योंकि जैसे ही आप उसको 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से अपने हाथ को छोड़ोगे वो स्प्रिंग खट से पीछे को आएगी, और वो अपने आप पीछे क्यों आ रही है? क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर्ड है, सम एनर्जी इज स्टोर्ड इन दैट। ठीक है, तो आप बताओ कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। जितना आपने वर्क किया है स्प्रिंग पे वही एनर्जी बन के स्टोर होगी उसमें। एंड
हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर ही इसका आंसर है, ठीक है। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, इसका करेक्ट आंसर निकालने में देखो कुछ गलतियां हो सकती है आपसे। तो लेट मी सी हाउ हाउ यू कैन फाइंड द आंसर, कैसे इसका आंसर निकालोगे बताओ। हाफ के की वैल्यू कितनी है? 2। एक्स की वैल्यू कितनी लोगे? 0.02. यस, दिस इज वेयर मेनी पीपल विल मेक अ मिस्टेक। बट टू टू देख लिया तो हाफ ऑफ 2 इंटू 2 का स्क्वायर कर दिया, सारी गलतियां यहां हो जाती है। द करेक्ट आंसर इज यू हैव टू मैच द यूनिट्स। देखो के की यूनिट न्यूटन पर मीटर में दे रखी है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है सेंटीमीटर में, तो आपको या तो के को न्यूटन पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Either of these things have to be done. You have to match the units and only then can you multiply things together. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 नहीं रहेगी, इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.02 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे। दिस नंबर ऑफ जूल्स इज योर आंसर। वर्क डन की यूनिट हमेशा याद रखें, अगर आपका वर्क डन न्यूटन मीटर में निकाला गया है तो उसको जूल्स भी लिख सकते हैं, J, which is the short form of joules. ठीक है? This is also called as the strain energy of spring. Another term that you should remember. Strain energy of spring. This is nothing but the energy stored in spring when you pull or push the spring. When you hold the spring in a stretched position or when you hold the spring in a compressed position. तो दोनों केसेस में चाहे आप उसको दबा के पकड़ो चाहे उसको खींच के पकड़ो, स्प्रिंग के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। और वो एनर्जी स्टोर कैसे हुई? इट इज स्टोर्ड बिकॉज some work was done on the spring in pulling or pushing it, so that work is stored as strain energy. तो ये जो टर्म्स हैं ये आपके एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली आपसे कंफ्यूज करने के काम करती है। एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग या स्प्रिंग एनर्जी या फिर स्ट्रेन एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। सर पोटेंशियल एनर्जी भी तो बताया ना आपने अभी। बिल्कुल सेम, पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। इट कैन बी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ऑल्सो। ये सारे नाम से याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, एवरीवन इज रिप्रेजेंटेड बाय हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है? एंड दिस इज ऑल्सो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। दिस इज एन इंपॉर्टेंट आउटकम, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब आने वाले न्यूमेरिकल्स में हाफ के एक्स स्क्वायर तो स्ट्रेन एनर्जी या वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है, और आपकी के एक्स स्प्रिंग की फोर्स है। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ऐसे आ जानी चाहिए जैसे कि 2 या 3 का पहाड़ा बोलते हो ना। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट है स्प्रिंग का बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपसे। ठीक है? आगे चले। वर्क डन बाय अ कपल और मोमेंट। अब देखो यहां फिगर में मैंने क्या बना रखा है, एक लीवर बना रखा है। देयर इज अ लीवर एंड ऑन द लीवर यू हैव पुट अ फल्क्रम। यहां पर एक पिन लगा दिया और इसको फिक्स कर दिया। अब ये सिर्फ ऐसे रोटेट हो सकता है। ठीक है? and you applied a torque or a moment in the counterclockwise direction of the value of m. अब आप ये निकालना चाहते हो या पता करना चाहते हो कि m टॉर्क लगाने से ये जो लीवर है ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से घूम करके इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है? व्हाट इज द वर्क? नाउ दिस इज प्योर रोटेशनल मोशन। और जैसा मैंने आपको प्योर रोटेशन और ट्रांसलेशन के बारे में बताया था, ट्रांसलेशनल मोशन की हर क्वांटिटी
क्वांटिटी को आप रोटेशनल मोशन के इक्विवेलेंट से अगर रिप्लेस कर दो तो आपको वर्क डन ही नहीं कोई भी चीज मिल जाएगी। तो अब मेरे को ये बताओ, फोर्स तो लीनियर मोशन की क्वांटिटी है, उसका रोटेशनल मोशन का इक्विवेलेंट क्या है फोर्स का? टॉर्क या फिर मोमेंट। टॉर्क या मोमेंट, या तो आप उसको टॉर्क टॉ लिखो या फिर मोमेंट एम लिखो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट आपकी एस, एक्स, वाई, जेड, ये सब चीजें लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है। रोटेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ओमेगा। नो, ओमेगा इज वेलोसिटी। अगर लीनियर मोशन में वेलोसिटी v है तो उसका इक्विवेलेंट होता है ओमेगा। डिस्प्लेसमेंट थीटा, थीटा इज द डिस्प्लेसमेंट इन रोटेशन। तो अगर मैं ये कहूं कि वर्क डन इन लीनियर मोशन इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो रोटेशनल मोशन में वर्क डन कैसे निकलेगा? मोमेंट इनटू थीटा, बस। और वही चीज यहां पे कर रखी है हमने। ये कहा कि अगर आप एक छोटे एंगल डी थीटा से उसको रोटेट करो, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी जनरेटेड एज एम इंटू डी थीटा। और अगर उसको थीटा 1 से थीटा 2 पोजीशन तक अगर पूरा वर्क डन निकालना है तो सिंपली एम इंटू डी थीटा को थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेट कर दो। अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको यहीं से पूछ लेता हूं। एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, उस डिस्क का रेडियस 2 मीटर्स है और उस डिस्क के ऊपर आपने एक टेंजेंशियल फोर्स लगाई है 3 न्यूटन की, ठीक है। और इस 3 न्यूटन के फोर्स के लगने से इसका रोटेशन हुआ इस डिस्क का 20 डिग्रीज, ठीक है। अब मेरे को ये पता करना है कि इसमें वर्क डन कितना है। हाउ डू आई डू दिस? क्वेश्चन वापस से सुनिए। 2 मीटर की एक डिस्क है, बस ऐसे खाली है, रोटेट कर सकती है इस सेंटर पॉइंट के अबाउट। आपने एक टेंजेंशियल फोर्स लगाई 3 न्यूटन की और इसके लगने से ये डिस्क 20 डिग्रीज तक रोटेट हो गया। व्हाट इज द वर्क? अब इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये प्योर रोटेशनल मोशन है? इसमें ट्रांसलेशन हो ही नहीं रहा, डिस्क अपनी जगह पर ही खड़ी है, बस घूम रही है। सो इट इज अ प्योर रोटेशनल मोशन। सो वर्क डन विल बी गिवन बाय फोर्स इंटू डिस्टेंस की बजाय मैं क्या कहूंगा? टॉर्क इंटू थीटा। दिस इज द वर्क डन। अब मेरे को थीटा तो पता है 20 डिग्री घुमा है, ठीक है, लेकिन यहां पर भी एक करेक्शन करना पड़ेगा। जब भी वर्क डन के लिए थीटा लिया जाता है उसको डिग्री में नहीं लेना है, ऑलवेज टेक इट इन रेडियंस। ठीक है, टॉर्क को लेना पड़ेगा आपको न्यूटन मीटर में। तो मेरे को कुल मिला के यही चाहिए बस, टॉर्क इंटू थीटा। थीटा आपको 20 डिग्री दे रखा है, टॉर्क निकालना है। कैसे निकालोगे टॉर्क? कैसे निकालते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द 6 सेंटर, न्यूटन मीटर ठीक है। सो टॉर्क इज इक्वल टू 6 न्यूटन मीटर। इंटू थीटा कितना लोगे बताओ? पाई बाय 9। पाई बाय 9 कैसे आया अपन देखते हैं। ये देखो 180 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, ठीक है। तो 1 डिग्री कितना हो गया? 2 पाई बाय 180 रेडियंस। तो 20 डिग्री कितना हो गया? 20 इंटू 2 पाई अपॉन 180, यानी कि 2 पाई बाय 9। दैट इज द करेक्ट आंसर। 2 पाई बाय 9 रेडियंस है आपका थीटा, ये याद रखना हमेशा, ठीक है।
ये हो गया 2 पाई बाय 9 एंड नाउ द वर्क डन इन जूल्स कैन बी कैलकुलेटेड एज 6 into 2 पाई बाय 9 जूल्स. दिस इज द करेक्ट आंसर. क्लियर हो गया. अपन ने रोटेशनल मोशन में भी वर्क निकाल लिया है. रोटेशनल मोशन, हाँ सर 1/2 पाई का होता है, पाई होता है वो तो. हाँ सर. सॉरी ये गलती कर दी मैंने. 180 इज इक्वल टू पाई होगा और ये पाई बाय 180 होगा एंड दिस विल बी पाई बाय 9. ठीक है. यस सर. ये 2 नहीं आएगा. थैंक यू फॉर द करेक्शन. 2 पाई इज 360 डिग्रीज. 180 डिग्री है पाई रेडियंस. आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक. चलो अच्छा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है. पाई बाय 9 रेडियंस आएगा. चलो ये तो क्लियर हो गया ना. वर्क डन रोटेशन में और ट्रांसलेशन में, अब दोनों में आपको निकालना आता है. ठीक है. नाउ लेट अस कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर. पावर इज नथिंग बट द टाइम रेट एट विच वर्क इज परफॉर्म्ड. यानी कि किस रफ्तार से वर्क परफॉर्म हो रहा है या किस रफ्तार से एनर्जी कंज्यूम हो रही है. दैट इज कॉल्ड एज पावर. तो अगर आपका चेंज इन वर्क डन du है, du by dt विल बी पावर. पावर की यूनिट क्या होती है, किसी को याद है क्या? इट इज वॉट्स. ठीक है. और 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड और 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड. ये तो बहुत बेसिक चीज है. अब देखो इसका लॉजिक देखो. चेंज इन वर्क डन तो कितना हो जाएगा, या स्मॉल du कितना है, f इंटू डी आर, यानी कि फोर्स इंटू स्मॉल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय dt. व्हाट इज dr बाय dt? इट इज नथिंग बट वेलोसिटी. तो बेसिकली पावर जो है ये और कुछ नहीं है, फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स लग रही है जो कि चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कांस्टेंट फोर्स राइट, और उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने से उसकी गति v वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में आ जाए, तो उसकी पावर जो दैट इज सिंपली गिवन बाय फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. और इसकी यूनिट आ जाएगी वॉट्स या फिर जूल पर सेकेंड या फिर न्यूटन मीटर पर सेकेंड. और उसी तरीके से यही सेम कॉन्सेप्ट लगाते हुए फोर्स रोटेशनल मोशन में अगर फोर्स को रिप्लेस करो टॉर्क से और लीनियर वेलोसिटी को रिप्लेस करो एंगुलर वेलोसिटी से, तो मेरे पास रोटेशनल मोशन की जो पावर आ गई वो आ गई टॉ इंटू ओमेगा. ठीक है. यानी कि टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा शुड बी इन रेडियन पर सेकेंड एंड टॉर्क शुड बी इन न्यूटन मीटर. तो ये पावर आ जाएगी वापस से आपकी वॉट्स में. तो पावर निकालने का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया. अब वर्क इज फोर्स इंटू डिस्टेंस, रोटेशनल मोशन में टॉर्क इंटू थीटा. पावर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, so that means power should be given by force into velocity in linear motion and torque into omega in rotational motion. ठीक है. Then we come to the concept of efficiency. Efficiency के बारे में ज्यादा आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है. पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, किसी भी मशीन का, इंजन का, गाड़ी का, ये एफिशिएंसी से रिलेटेड अपन एक आध क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको वैसी ही चीजें क्लियर हो जाएगी. एक छोटा सा भी करवा देता हूँ आपको. It can either be calculated as the ratio of output power to input power, or it can also be calculated as the output work to input work. And for some machines, you can even compute it as output work upon input energy. जैसे कि गाड़ी चलती है तो उसमें इनपुट क्या होता है, केमिकल फ्यूल एनर्जी है, और आउटपुट क्या है, मैकेनिकल वर्क है. तो एफिशिएंसी ऑफ अ व्हीकल is calculated as output work divided by input energy. तो बेसिकली अगर आप एफिशिएंसी की बात करो तो ये वर्क, पावर, ये पावर वावर सब भूल जाओ. आपको सिर्फ इतना याद रखो, आउटपुट बाय इनपुट, कितना बाहर आ रहा है और कितना अंदर जा रहा है, इसका रेशियो. दिस इज एफिशिएंसी. एंड एज अ लॉ ऑफ नेचर, एफिशिएंसी ऑफ एवरी मशीन
is inevitably bound to be less than 1, क्योंकि हर चीज में लॉसेस होती है. ठीक है. एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट इतना ही है. वी विल कम अक्रॉस एफिशिएंसी अगेन इन आवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. एनर्जी की बात करें, एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क. यूनिट ऑफ एनर्जी कितना है, वो भी जूल ही है. वर्क डन और एनर्जी की सेम यूनिट है, जूल. इट एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, हीट, लाइट एटसेट्रा. वी आर इंटरेस्टेड इन मैकेनिकल एनर्जी. हम लोग अभी अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जब अपन पढ़ाई करेंगे तो एनर्जी के कौन से फॉर्म से अपन को मतलब है, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी से. और मैकेनिकल एनर्जी का जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ इन 3 चीजों में ही होता है. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड स्ट्रेन एनर्जी. स्ट्रेन एनर्जी मैंने आपको अभी बताया. इफ somebody asks you, explain in your own words the concept of strain energy, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है, स्ट्रेन एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इलास्टिक बॉडीज. तो काइनेटिक एनर्जी तो किसी रिजिड बॉडी की हो सकती है, अगर वो भाग रही है, चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी होगी. पोटेंशियल एनर्जी आपको पता ही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे कॉमन है आपके लिए. पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाने से बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी नीचे आने से घटती है. ठीक है. स्ट्रेन एनर्जी जो है, ये याद रखना है, ये सिर्फ इलास्टिक बॉडीज के लिए डिफरेंट होती है. दिस इज द कोर वर्ड, इलास्टिक. तो अगर बॉडी इलास्टिक है, लचीली है, एंड इफ यू ट्राई टू डिफॉर्म इट, जैसे कि स्प्रिंग की बात की थी, और अपन ने स्प्रिंग में कहा था कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर. तो वो क्यों आपने उसमें स्ट्रेन एनर्जी की बात की? बिकॉज स्प्रिंग इज एन इलास्टिक मेंबर, और इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स को डिफॉर्म किया जा सकता है. इट कैन बी कंप्रेस्ड और इट कैन बी स्ट्रेच्ड और इट्स शेप कैन बी चेंज्ड, एंड इन चेंजिंग द शेप सम वर्क हैज टू बी डन, and that work is stored as the elastic strain energy inside the body. तो ये 3 ही प्रकार की एनर्जी से हम काम करेंगे अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर. बाकी एनर्जी तो इन जनरल कई प्रकार की होती है, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, हीट, लाइट. वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट. वी विल बी बॉदरिंग आवरसेल्व्स अबाउट काइनेटिक एनर्जी, potential energy and strain energy. And strain energy will be counted only when you encounter elastic bodies. जैसे कि अगर किसी प्रॉब्लम में स्प्रिंग व्रिंग कुछ लगी नहीं है तो उसमें 2 ही मैकेनिकल एनर्जीज होगी, काइनेटिक और पोटेंशियल. और अगर किसी चीज में स्प्रिंग भी लगी है तो उसमें तीनों टाइप की एनर्जीज काउंट होंगी, काइनेटिक, पोटेंशियल और स्ट्रेन. तो वी विल come across these types of energies in the numericals and then we will discuss that. काइनेटिक एनर्जी के बारे में सिर्फ इतना ही कहना काफी है. हाफ mv स्क्वायर, v is the uniform velocity, m is the mass of the body. अगर रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, प्योर रोटेशन हो रहा है, तो वंस अगेन आई कैन ऑब्टेन द काइनेटिक एनर्जी बाय रिप्लेसिंग द लीनियर काउंटर पार्ट विद द रोटेशनल काउंटर पार्ट. मास की जगह मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, हाफ तो हाफ ही रहेगा. लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा. तो इसीलिए अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है और अगर उस रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो हाफ mv स्क्वायर की जगह में क्या करूंगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करूंगा. वेयर आई और ये नॉट का सफिक्स क्यों लगाया है, क्योंकि ये ओ है, ओ पॉइंट पे पिवटेड है. तो ओ पॉइंट के थ्रू जो एक्सिस पास हो रही है आपकी, ये देखो, ये जो एक्सिस आपके पास हो रही है ओ पॉइंट के थ्रू, इस एक्सिस के अबाउट इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई. और चूंकि एक्सिस ओ से पास हो रही है इसलिए सफिक्स ओ लगाया है. सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लीनियर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. Kinetic energy of rigid body executing translation and rotation simultaneously. अब जैसे एक ये केस लो, एक सिलेंडर लिया आपने और उस सिलेंडर को एक सीधे रोड पे लुढ़का दिया. Now the cylinder is rotating and the cylinder is also moving in the forward direction.
तो इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि रोटेशन के साथ साथ लीनियर मोशन भी हो रहा है साइमultaneously, then the total kinetic energy must be calculated as the sum of linear and rotational. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जो मोशन है सिलेंडर लुढ़कता हुआ रोड पे आगे को चल रहा है, ये ना तो प्योर रोटेशन है और ना प्योर ट्रांसलेशन है, ये रोटेशन और ट्रांसलेशन का कॉम्बिनेशन है। और उस केस में काइनेटिक एनर्जी अगर निकालने को कही जाए, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ रोटेशनल एंड लीनियर काउंटरपार्ट्स। तो ये आपको बता देंगे, ये इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। वी विल कम अक्रॉस सच सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स आल्सो, तो उस टाइम पे अपन डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, ओके सर। आई विल टेक द अटेंडेंस नाउ, प्लीज डोंट गो अवे।